Students, we will continue with chapter 11, cash book, books of original entry cash book. Our next topic is double column cash book. Yesterday we done single column cash book, today we will do double column cash book. Double column cash book or two column cash book with cash book and bank column. Cash book with cash book and bank column. It is a cash book with two columns on each side. One column for recording cash transactions and other column for recording bank transaction. Now there will be two column for written amount के दो column होंगे at debit side and credit side, cash and bank. Okay, the advantage of maintaining such a type of cash book is that cash column and bank column represent cash account and bank account. Cash column cash account को represent करेगा like in the single column cash book, and bank column will represent the bank account. Whenever we will receive or paid check, whenever we will receive the check at the debit side, we will write the amount in bank column, and whenever we will pay the check at credit side, we will write in the bank column. Okay, hence it is not necessary for open cash account and bank account in the ledger. तो आपको कैश और बैंक का लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. Following rules are observed for preparing such a book. First, a bank account is a personal account. A bank account is a personal account, and such the rule applicable to be debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. For cash, real account rule, debit what comes in, credit what goes out. For bank, debit the receiver, credit the giver. Okay, जब बैंक में पैसा जाएगा, the bank will be debit. जब बैंक पैसा देगा, तो bank will be credit. Okay, should be followed while recording transaction in the bank column and cash book. Thus, for cash deposited into bank, the bank would be receiver, hence would be debited into bank column and of the cash book. Bank cash deposited into bank, it's called contra entry. These types of called contra entry. जब हम बैंक से कैश विड्रॉ करवाएंगे, this entry will be passed at both side. Okay, at that time विड्रॉ कर रहे हैं, बैंक इज गिविंग द कैश. एट क्रेडिट साइड बैंक विल बी क्रेडिट, एंड एट डेबिट साइड बैंक विल बी डेबिट. एंड इन लेजर फोलियो वी विल राइट सी कॉन्ट्रा. लेजर फोलियो में हम लिखते हैं कॉन्ट्रा. ओके, सिमिलरली फॉर ईच ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बैंक फॉर चेक इशूड, द बैंक वुड गिवर एंड हेंस वुड बी क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक. ओपनिंग बैलेंस एज कैश कॉलम वुड ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस. कैश कॉलम में तो हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा. yesterday we studied about it. Why? Okay, it will be written as two balance brought down on the debit side, but the opening balance of the bank column may be given as debit or credit. बैंक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है. बिकॉज इफ वी आर हैविंग ओवरड्राफ्ट लिमिट, इफ बैंक अकाउंट इज ओवरड्राफ्ट, देन द बैलेंस विल बी क्रेडिट, then we will write at credit side by balance carried down. Okay, as such, if the debit balance of bank is given in the question, it will be written as two balance brought down on the debit side, and on the contrary, if credit bank is given, it will be written by balance brought down on the credit side. If overdraft balance is given, it will be treated as credit balance. अगर क्रेडिट बैलेंस डायरेक्ट लिखा हुआ है आपके पास, बैंक बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, बैंक अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, देन क्रेडिट साइड आएगा. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हो, इसका मीनिंग भी क्रेडिट बैलेंस होता है. ओके, contra entries when cash is deposited into the bank or when cash is withdrawn from the bank for use in the office. Each such transaction attached both cash column as well as bank column. जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट करवाएंगे या कैश विड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर विड्रॉइंग द कैश फ्रॉम बैंक, ओके, देन कैश अकाउंट विल बी डेबिट. कैश डेबिट साइड में कैश में अमाउंट आएगा, क्रेडिट साइड में बैंक में आएगा. अगर आप विड्रॉ करवा रहे हैं तो, अगर डिपॉजिट करवा रहे हैं तो कैश में क्रेडिट आएगा, कैश में डेबिट आएगा और बैंक में क्रेडिट आएगा. ओके, एंड द बैंक ट्रांजेक्शन देयरफॉर रिकॉर्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक. सच एंट्रीज द डबल एंट्री ऑफ विच कंप्लीटेड इन कैश बुक इटसेल्फ और कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज. ऐसी एंट्री को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, it increase the bank balance and reduce the cash balance. Hence, it affects the cash column as well as bank column.
एज सच द सेम अमाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड। दोनों साइड लिखी जाएगी अमाउंट। ऑन डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, डेबिट साइड बैंक कॉलम में, और क्रेडिट साइड ओके ऑन क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट रिटर्न एज इन द कैश कॉलम। डेबिट बैंक अकाउंट as bank receiving cash, okay, debit the receiver, and credit cash account as cash is going out, as cash is going out. Okay, how we will show? Like this we will show. For example, if we deposited 2000 rupees into bank, 2000 बैंक में जमा करवाए, तो कैश हमारा डिक्रीज हो गया, सो कैश विल बी क्रेडिट, और बैंक हमारा इंक्रीज हो गया। ओके, बैंक का रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक विल बी डेबिट। ओके, यू कैन सी हियर कैश इज क्रेडिट, कैश क्या हो रहा है आपका क्रेडिट, कैश कॉलम में क्रेडिट अमाउंट लाइन लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ओके, एंड बैंक विल बी डेबिट एट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट। इट इज़ द फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक, सेम फॉर्मेट लाइक सिंगल कॉलम, बट नाउ देयर विल बी टू कॉलम्स, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक। जब हमने कैश बैंक से बैंक में डिपॉजिट करवाया, ओके, डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिट, बैंक के कॉलम में डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और कैश को क्रेडिट करेंगे बाय बैंक अकाउंट। लेजर फोलियो में लिखेंगे कॉन्ट्रा सी, इन लेजर फोलियो इट विल बी कॉन्ट्रा सी। ओके, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, जब बैंक से कैश विड्रॉ करवाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने 2000 रुपीज़ विड्रॉ करवाया तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कैश कॉलम में 2000 रुपीज़, बाय कैश अकाउंट बैंक कॉलम में 2000 रुपीज़, और यहाँ पे कॉन्ट्रा लाइक दिस। इन दिस केस कैश बैलेंस इज इंक्रीज, कैश इंक्रीज होगा तो कैश डेबिट हो जाएगा। ओके, एंड द बैंक बैलेंस इज रिड्यूस, ऑन डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट इज रिटर्न एंड द अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम। ऑन क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट इज रिटर्न एंड द अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन टू बैंक कॉलम। डेबिट कैश अकाउंट एज कैश इज कमिंग इन, credit bank account as bank is giver, credit the giver. Now example, for example 2500 withdraw from bank, 2500 रुपये बैंक से विड्रॉ करवाए, तो डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा कैश कॉलम 2500 एंड बैंक कॉलम क्रेडिट 2500 बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा। इट इज़ द एंट्री वेन एवर यू विल रिसीव कैश फ्रॉम बैंक, withdraw cash from bank or deposit cash from bank, this entry you will show in the cash book at both sides. This entry is called contra entry. Okay, contra entries are required to be posted to ledger as the double entry is completed in the cash book itself. Cash book itself serves as the cash account and the bank account, so इस entry को आपको आर नॉट रिक्वायर्ड टू पोस्ट इन लेजर, इसको लेजर में पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं। सो वी आर राइटिंग इन लेजर फोलियो कॉन्ट्रा, ये हमने इसको पोस्ट कर दिया है ऑलरेडी। ओके, इन ऑर्डर टू इंडिकेट दैट दीज एंट्रीज आर नॉट पोस्टेड इन द लेजर, दैट वर्ड सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा इज रिटन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ लेजर फोलियो कॉलम। द वर्ड कॉन्ट्रा मीन्स ऑपोजिट और अगेंस्ट, वर्ड कॉन्ट्रा मीन्स ऑपोजिट और अगेंस्ट, इसके ऑपोजिट हमने ये एंट्री पास कर दी है। देयर इज नो नीड टू पोस्ट इन द लेजर। नाउ रिसीट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट, जब हम कोई चेक या बैंक ड्राफ्ट रिसीव करेंगे जिससे हमने पैसा लेना है, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक एट द सेम डे, अगर वो चेक सेम डे डिपॉजिट हो जाएगा, ओके, दीज एंटर इन द बैंक कॉलम होगा, तो हम बैंक कॉलम में डेबिट साइड में लिख देंगे टू, मान लो राम से चेक लिया टू राम, और बैंक कॉलम में लिखा जाएगा जो भी अमाउंट होगा। ओके, बट इफ़ चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर बट नॉट डिपॉजिट इनटू द बैंक, अगर हमने चेक रिसीव किया है लेकिन अभी तक डिपॉजिट नहीं करवाया, वो चेक हमारे पास ही है, तो चेक नॉट डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन जर्नल एंट्री, तो पहले जर्नल एंट्री होगी चेक इन हैंड टू पार्टी, चेक इन हैंड टू पार्टी। ओके, ये जर्नल में एंट्री पास करेंगे, और जिस दिन हम उस चेक को डिपॉजिट करवाएंगे उस दिन कैश बुक में एंट्री पास करेंगे चेक इन हैंड टू चेक इन हैंड। व्हेन दिस चेक
is deposited into bank, it is recorded into cash book by entering the bank column debit side to check in hand. Now there is example. For example, on 15th Feb 2020, a check is received from Gurpreet for rupees 25,000. This check was deposited into bank on 20th Feb. अब चेक रिसीव कब किया हमने 15th Feb को और डिपॉजिट कब हो रहा है 20th Feb को. ऑन 15th Feb वी पास जर्नल एंट्री पास करेंगे. ऑन रिसिप्ट ऑफ चेक द फॉलोइंग एंट्री बिकॉज वी आर नॉट डिपॉजिटिंग ऑन द सेम डे. एंट्री विल बी जर्नल में एक एंट्री पास करेंगे. दिस एंट्री चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू गुरप्रीत. चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू गुरप्रीत. ओके. ऑन डिपॉजिट चेक ऑन 20th Feb, जब 20 फरवरी को चेक करवाएंगे तब कैश बुक में एंट्री पास करेंगे 20th Feb टू चेक इन हैंड. क्या लिखेंगे पर्टिकुलर टू चेक इन हैंड एंड बैंक विल बी डेबिट. बैंक विल बी डेबिट विद 25,000. ओके. नाउ in the question sometimes there is no information as the deposited date the check. In such a case it will be assumed that the check has been deposited into the bank on same day. अगर डिपॉजिट डेट की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो जस्ट लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम. ऐसा आगे क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि चेक को डिपॉजिट करवाया गया या नहीं करवाया गया, तो इट मीन्स हमने चेक सेम डे डिपॉजिट करवा दिया है. पेमेंट बाय चेक एज सून एज वी इशू द चेक टू समवन it will immediately record in the credit side of bank so that we may be acquired of true balance of the bank. जब चेक से पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय, जिसको पेमेंट करी गई है बाय गुरप्रीत 10,000 रुपीज़ इन बैंक कॉलम. डिसऑनर ऑफ चेक इफ चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर एन एंट्री विल बी मेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक. अब अगर गुरप्रीत से चेक लिया था ये डिसऑनर हो गया तो क्रेडिट साइड में एंट्री पास करेंगे. ओके. द अमाउंट ऑफ डिसऑनर चेक इन बैंक कॉलम इन ए पर्टिकुलर कॉलम द नेम ऑफ द पर्सन कस्टमर विल बी एंटर्ड. फॉर एग्जाम्पल ए चेक रुपीज 20,000 रिसीव्ड फ्रॉम राम इज डिसऑनर. It will recorded on the credit side of by Ram Kumar and amount will be entered in the bank column. Cash discount in a cash book having cash and bank column, the amount of discount recorded in journal proper. For example, rupees 4,800 are received from Yuvraj Singh in full settlement of his account of 5,000. In such a case 4,800 will be recorded in the cash book and 200 will be recorded in the journal. ओके. अगर हमने किसी से 5,000 रुपीज़ लेने हैं उससे 4,800 ले लिया और 200 का डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट वाला जो पोर्शन है वो जर्नल में पास होगा. डिस्काउंट अलाउड टू युवराज. और जो अमाउंट आपने लिया है वो कैश बुक में पास होगा. चेक लिया है तो चेक में और कैश लिया है तो कैश में. आफ्टर दैट वी विल डू द बैलेंसिंग. डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम विल ऑलवेज एक्सीड द क्रेडिट कॉलम. As such, the balance will shown in the credit side by writing by balance carried down. ओके. कैश कॉलम का बैलेंस हमेशा आपका डेबिट आएगा. डेबिट का जो बैलेंस है वो आपका ज़्यादा होगा क्रेडिट से. बट इन बैंक कॉलम यूजली द बैंक कॉलम आर बैलेंस जस्ट लाइक द कैश कॉलम. हाउएवर द बैंक कॉलम may show either debit balance or credit balance because if you are having overdraft limit then it can be vice versa also. If it shows a credit balance it's called overdraft. Overdraft is situation when cash withdrawn from bank exceeds the amount deposited into bank. Overdraft क्या होता है कि अगर हमने बैंक में 1 लाख रुपया है हमारा लेकिन हमने पेमेंट्स 1.5 लाख की कर दी हैं तो 50,000 बैंक विल पे from their pocket. It is called overdraft. Okay. In such a case the total of credit side of bank column will be bigger than the total of debit side. The difference will be written on the debit side as to balance carried down at the beginning of the month. The balance will be by balance carried down. I will send 2 videos. Okay. In next video I will explain this illustration. Okay. It is from your book only. Okay. I will explain this illustration in next video. Okay.